Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll quickly just revise the concepts we have discussed before moving to the problems. So first, we have discussed that Indian income is taxable irrespective of the residential status, and foreign income is taxable for ROR, not taxable for NR, and taxable in case of NOR only in case of two cases, right? One is business is controlled wholly or partly from India, or profession is set up in India. Okay. And in yesterday's class, we also discussed certain concepts related to income. Okay, there we understood that we have to tax only the receipts, not the remittances, right? So we have to tax only those incomes that we have received in the first occasion. Okay, remittances we don't have to tax. किसी को कोई doubt है क्या? In cash versus kind mein we discussed that we have to tax both of them. It's not necessary that the person should receive the income in cash only. It could be in kind also. Then we understood that we have to charge the income irrespective of the fact that whether we have received or not. So we have to charge the accrual receipts as well. Then we have understood about the deemed receipts. So in Act, there are 5 things which are specifically written in which we will assume them as to be deemed to be received in India. ठीक है, जिसमें था आपका excess contribution of employer in case of recognized provident fund in excess of 12% of salary. Then interest credited in recognized provident fund in excess of 9.5%. Transfer balance from unrecognized fund to a recognized provident fund. Then contribution by central government or any other employee to the account of an employee on the pension scheme specified under section 80 CCT and TDS. So these are the 5 cases in which we will assume that the income is a deemed receipt. Okay. Then we understood about all the circumstances in which we will categorize the income as to be deemed to accrue or arise in India. ठीक है, so उसमें there were 7 categories, जिसमें first was income from business connection. So इसके लिए there are 2 conditions which should be satisfied. First is the taxpayer has a business connection in India, and the second is due to that business connection, income actually arises outside India. Okay, so these 2 conditions should be satisfied. Then we'll say that the income is deemed to accrue or arise in India. There are some instances in which we can be confirmed that there is a business connection in India in case the non-resident is maintaining a branch office in India, or he has appointed an agent in India, or he has set up a factory in India, or he has formed a local subsidiary company in India, or in case of any financial association between the resident and the non-resident company. So if any of these conditions are satisfied, we can say not the conditions, basically these are circumstances are there in respect of the assessee, we'll say that he has a business connection in India. So any of it can be, satisfied. Then there are some of the criteria in which we say that there is no business connection. Suppose all of the operations are not carried out in India. So in that case, we will just take that fraction of the income which is actually attributable due to the business connection in India. So wahi fraction we will just take. या फिर if the non-resident is having a a kind of just trading activity, जैसे he is just importing from India for the purpose of export, उस case में भी he has no business connections in India. In case broadcasting or any kind of news agency are collecting news and views from India, या फिर कोई outside कोई भी non-resident is making a film in India, या कोई फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, उसका जो फंड मैनेजर है ही इज डूइंग एनी एक्टिविटी कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर फंड मैनेजमेंट इन इंडिया, या फिर कोई फॉरेनर इज डिस्प्लेइंग दी uncut or any kind of assorted diamonds in the notified special zone. So अगर ये criteria भी so भी we will say that he has no business connection in India. Then we understood
The second thing that income, ये सारे कौन सी चल रहे हैं, deemed to accrue or arise in India. So second one is income through or from any property, asset or source of income in India. So अगर कोई भी ऐसी income आती है किसी भी चीज से which is situated in India, we'll say that it is deemed to accrue or arise in India. Then income through the transfer of capital assets situated in India. So कोई capital asset है which is situated in India और वो capital asset the foreigner is going to transfer and he's earning any kind of income for that, so he is liable to pay tax to the government. So he'll be this particular income will be considered as an Indian income that is deemed to accrue or arise in India. Then income under the head salaries. So if any kind of service is rendered in India, salary income is deemed to be accrue or arise in India. So अगर कोई भी service जो भी जिसको सैलरी मिल रही है अगर उसकी सारी सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया तो वो इंडियन इनकम हो. देन सैलरी पेबल अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो अगर गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को बाहर अगर कोई भी सैलरी पे कर रही है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. बट देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स. ठीक है, उनको जो देते हैं ना अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, बट द सैलरी दैट इज द बेसिक सैलरी और जो भी अदर चीजें होती हैं वो सारी टैक्सेबल होती है. देन डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी. सो अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर इंडियन कंपनी के डिविडेंड्स रिसीव कर रहा है तो वो माना जाएगा डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, चाहे फॉरेनर रिसीव कर रहा हो बट द डिविडेंड्स आर फ्रॉम द इंडियन कंपनी. देन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस. सो ये तीनों अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो हम मानेंगे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब इंडियन इनकम है. या फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस रेजिडेंट दे रहा है फॉरेनर को तो वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी. बट अगर वो जो इंटरेस्ट था जो वो पे कर रहा है जिस बोरोड अमाउंट के लिए, इफ इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया या कोई भी इनकम वहीं बाहर ही हो रही है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो डीम टू अक्रू अराइज नहीं माना जाएगा क्योंकि पूरा बिजनेस प्रोफेशन बाहर के लिए. सिमिलरली रॉयल्टी और टेक्निकल फीस जो वो दे रहा है वो भी उस बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है जो बाहर कैरिड आउट हो रहा है, तो उस केस में नहीं करेंगे. देन इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट. ठीक है, सो नॉन रेजिडेंट से अब मिल रही है, सो उस केस में वो कब होगी, जब इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. जैसे बोरोड मनी इज यूटिलाइज्ड बाय द पेयर फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे नॉट वाला केस है, नॉट एप्लीकेबल जब सब बाहर हो रहा है, इसमें है एप्लीकेबल जब सब इंडिया में हो रहा है. ठीक है, और बस जो पेयर है वो चेंज हो रहा है. Then payment of royalty technical fees pertains to a business profession carried on by a payer in India or earning any income in India. ठीक है, so उस केस में भी it will be considered as deemed to accrue or arise in India. Then interest received outside India by a foreign bank from its branch in India. ठीक है, so कोई भी किसी का कोई अकाउंट है सपोज जैसे फॉरेन बैंक है HSBC, उसकी ब्रांच है इंडिया में और किसी फॉरेनर का उस ब्रांच इंडिया की ब्रांच में अकाउंट है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट जो भी अराइज हो रहा है इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. ठीक है, सो वो इंडियन इनकम माना जाएगा क्योंकि इंडियन इनकम की डेफिनेशन में है कि आपको क्या क्या लेना है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया या फिर अक्रू इन इंडिया, अराइज इन इंडिया या फिर डीम टू अक्रू या डीम टू अराइज इन इंडिया. ठीक है, ये अगर कोई भी सेटिस्फाई हो जाती है ना तो हम कहते हैं इट्स एन इंडियन इनकम. और इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस. ठीक है, so now ये रॉयल्टी आप देख लेना, जस्ट द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, इट हैज नो रिलेशन विद द प्रॉब्लम्स. ठीक है, so this is the first problem that we have to calculate the total income of Mr. Y who is a citizen of Dubai. Okay, foreign citizen है ये. So पहला आता है capital gain on sale of property situated in India, amount received in Dubai 20 lakh rupees. So, सबसे पहले तो मुझे बताओ वेदर इट इज एन इंडियन इनकम और अ फॉरेन इनकम. ठीक है, मुझे बताएंगे भी जिनको बताना है और जिनको नहीं बोलना है वो लिखेंगे कमेंट में, बट सब पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर इनकम को क्या कंसिडर करोगे, इज इन एन इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम.
हम इंडियन Indian. मैम इंडियन। मैम इंडियन इनकम। Why? Why? because it Economic property arises sale in in India. India. बिकॉज ऑफ बोलो बोलो। Because मैम property is situated in Delhi. That's why. Yes, because property is situated in Delhi. So any kind of capital gain on transfer of property which is situated in India is considered as to be deemed to accrue or arise in India. Right? So it deemed to accrue or arise in India, इसका मतलब ये Indian income है. Indian income is chargeable in all the three, right? So 20 lakhs, 20 lakhs, Yes, ma'am. 20 lakhs. ठीक है. Now move to next question. Income from a business in Mumbai controlled from Delhi received and accrued in India. Sorry, Dubai. Sorry, Dubai. Income from a business in Mumbai controlled from Dubai. इंडियन इनकम। Indian income. सिर्फ एक बच्चे ने बोला है। मैम इंडियन इनकम। Yes, ma'am. Indian income. Income. Indian, Why? ma'am. Why? Ma'am, because received and Because accrued in India. Okay, perfect. So, since the income is received and accrued in India, it is an Indian income, so it is taxable irrespective of the residential status of the foreign citizen, Mr. Y. So, ये भी आ गया आपका 19 lakhs 500, 19 lakhs 500, 19 lakhs 500. Okay. Income from a business in Dubai, controlled from Delhi, and amount received in Dubai. इंडियन इनकम। Indian income. मैम इंडियन इनकम। कैसे बेटा इंडियन इनकम कैसे है? बिजनेस Controlled from इनकम Delhi. business control in Delhi. ये कौन सा है? ये कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली तो है, बट इंडियन इनकम की कौन सी डेफिनेशन में लाई कर रहा है? इंडियन इनकम की क्या डेफिनेशन है? Ma'am, maybe that the business is wholly or partly controlled in India. नहीं, ये तो इंडियन इनकम की डेफिनेशन में ही नहीं है। इंडियन इनकम हम वो फॉरेन इनकम का नॉन रेसिडेंट वाले में 2 केसेस था, उसमें लिखा था कि बिजनेस अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो वो अच्छा सॉरी टैक्सेबल होगा। हाँ सॉरी करेक्ट बोला बेटा आपने, बिकॉज दिस इज अ फॉरेन इनकम। भाई ये बिजनेस कनेक्शन की बात नहीं कर रहा है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. It is not talking about the business connection. Business connection में we say that it is deemed to accrue or arise in India. यहाँ पे simple कह रहा है कि amount is received in Dubai. Income from business is controlled from Delhi. ठीक है? Amount received in Dubai है. It means ये कोई deemed category में भी नहीं आ रहा है. ठीक है? Deemed received की वो 5 categories है ना, तो वो उसमें आ रहा है. डीम टू अक्रू और अराइज की 7 कैटेगरीज है, उसमें से भी नहीं आ रहा है. बिजनेस कंट्रोल्ड है, बिजनेस कनेक्शन नहीं है. ठीक है? सो इस केस में क्या होगा? इट इज फॉरेन इनकम, एंड फॉरेन इनकम इज चार्जेबल इन केस ऑफ आरओआर, नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ एनआर. बट एनओआर के केस में 2 केसेस हैं, उसमें से एक केस ये सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली. तो इसका मतलब एनओआर के केस में इट विल बी टैक्सेबल. क्लियर है ये सबको? यस यस मैम। ठीक है, ऐसे घुमाएगा क्वेश्चन आपको, थोड़ा थोड़ा ना हर चीज में ना कुछ ऐसा डाल देगा. तो हमेशा ध्यान देना है कि ऐसे एकदम से इंडियन इनकम नहीं बोल देना है कि दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है. तो इंडियन इनकम होगा तो सबके लिए चार्जेबल हो जाएगा, एनआर के लिए भी. बट ये इंडियन इनकम है ही नहीं, दिस इज अ फॉरेन इनकम. एनआर के केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. इंटरेस्ट फ्रॉम शेयर्स इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई. बताओ, इंडियन इनकम होगी फॉरेन इनकम होगी? Foreign income. मैम इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। क्यों होगी इंडियन इनकम? इंडियन कंपनी है। And foreign income. मैम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। It is deemed to be accrue or arise in India. Deemed to accrue or arise in India की जो 7 कैटेगरीज थी ना, उसमें से एक कैटेगरी थी कि इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी. सो हमारी कंपनी इंडियन कंपनी है, उससे इंटरेस्ट फ्रॉम शेयर्स आर डिविडेंड. ठीक है, दिस इज ओनली टू कंफ्यूज यू. शेयर्स पे कभी इंटरेस्ट तो मिलता नहीं, हमेशा डिविडेंड ही मिलता है.
ठीक है. सो अगर शेयर से हमें कोई भी डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है इंडियन कंपनी, सो वी विल से इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और इफ इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, it is an Indian income, so it is taxable to all of them. ठीक है. So this is the answer of starting 4 points. ठीक है, कि इंडियन इनकम है सबका हो गया, सिर्फ यहाँ पे यही फॉरेन इनकम था, और फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन एनआर. तो यहाँ पे बस ये सब नहीं आएगा, बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट पे चले. Yes, ma'am. Yes. Next, royalty received from Delhi government paid to him in Dubai for a project situated in Dubai, 20 lakhs. Indian income, foreign income? Indian income. Indian Why? income. Why? Indian Delhi government. Yes, yes. So any kind of royalty, interest, or technical fee paid by central government or any state government, it is considered as deemed to accrue or arise in India. So it's an Indian income and it is taxable in all the 3 categories. ठीक है? Next, technical fee received from Delhi government paid to him in Dubai for a project situated in Dubai. Indian income. Indian income, Indian same income. logic. Yes, same logic, right? क्योंकि टेक्निकल फीस, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, वो तीनों कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा है वो पॉइंट. सो इसके बाद अगर वो इंटरेस्ट भी लिख देता, अगर दिल्ली गवर्नमेंट से कोई मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल होता. इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द 3 कैटेगरीज. तो अगर सेंट्रल दे, स्टेट दे, अगर कोई भी रॉयल्टी, टेक्निकल फी या इंटरेस्ट दे रहा है तो हम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके. ठीक है, कि कैलकुलेट द टोटल इनकम, और उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको सारा टोटल लिखना है. ठीक है, जो मैं आपको भी टेस्ट दूंगी वो ऐसा ही होगा कि आपको यहाँ पे मुझे टोटल बताना है कि आरओआर का कितना टोटल होगा, एनओआर का कितना टोटल होगा, एनआर का कितना टोटल होगा. इस बेसिस पे आई विल चेक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, सिटीजन ऑफ लंदन. First, salary from a UK company received in London for rendering services in London. Foreign income. Foreign. Foreign income. Foreign income. ठीक है. अब बताओ किसके लिए चार्जेबल होगा? आरओआर के लिए होगी चार्जेबल? Yes, ma'am. यस. एनओआर के लिए? No, No, ma'am. ma'am. नो, बिकॉज बोथ द केसेस आर नॉट सेटिस्फाइड. ओके, एनआर के लिए? No. No, ma'am. नो. ठीक है, सबको समझ आता है, जा रहा है ना? अगर किसी को भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना, या जिसको बोलना है, जिसको चाहिए कि मैं थोड़ा स्लो जाऊं तो प्लीज बोल देना मुझे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपका डिटरमाइन भी करा लेते हैं कि स्टेटस क्या है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. सैलरी फ्रॉम अ यूके कंपनी रिसीव्ड इन लंदन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन दिल्ली. टेल मी. I'm Indian income. इंडियन इनकम है. व्हाई? Deemed to accrue in India. Ma'am, service provided in India. That's why. वेरी गुड, वेरी गुड. सिंस हमने फर्स्ट जो करा था बिजनेस कनेक्शन के बाद, वो सेकंड जो था वो सैलरी के बारे में था कि अगर किसी को सैलरी मिलती है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन इंडिया, हम उसको डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेते हैं. सो इट इज एन इंडियन इनकम. ठीक है, भले ही कहीं पे भी वो बैठा हो और कहीं उसको कहीं पे भी पैसे मिल रहे हो, बट अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर्ड है तो वो हम बोलेंगे इट्स एन इंडियन इनकम. ठीक है. थर्ड, business income received in London. Business is situated in London and is partly controlled from London and partly from India. Indian income. Indian income. Indian income. Why? Because it's partly controlled from India. Sorry. Foreign income. Foreign income. Foreign income, but taxable. Taxable. Foreign income, but taxable in case of NOR also. NOR. Right.
बहुत कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी बिजनेस कंट्रोल और बिजनेस कनेक्शन से, ठीक है। सो इट इज फॉरेन इनकम बट इट इज taxable in case of NOR because it's satisfying the first condition. और first condition है business controlled either wholly or partly. So it is partly controlled from India. So NOR के केस में होगी but income foreign है, ठीक है, क्योंकि राइज नहीं हो रही है इंडिया में, ना रिसीव हो रही है ना डीम टू रिसीव और डीम टू अक्रू है। नेक्स्ट, business income received in London but later half of the amount is remitted to Delhi. Business is situated in London and is partly controlled from London and partly from Dubai. Foreign income. Foreign income. Foreign income. Foreign income and taxable in case of ROR. only ROR? Yes, NOR. Yes, only ROR. Only ROR, मतलब NOR और NR के लिए it will not be taxable क्योंकि हमारे केसेस नहीं satisfied हो रहे, ठीक है। Next, rental income from a property situated in Delhi and received in London. Indian income. Indian income. Indian income. Indian income है because it is falling under the category of deemed to accrue or arise in India. ठीक है, अगर कोई भी हमारा असेट प्रॉपर्टी या कुछ भी हमारा सिचुएटेड है इंडिया में और उससे कोई भी हमें इनकम आ रही है तो वील से इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, एंड व्हेन इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज वी से इट इज एन इंडियन इनकम। Birthday gift received in India from his friends and relatives. Indian income. Indian income. Indian income because Received in India. received in India. So it is taxable in all the cases. ठीक है, so this is the total. Next question. अब ये ना कोई भी मुझे इसका आंसर नहीं देगा, ठीक है, पूरा सॉल्व करेगा ये क्वेश्चन और मुझे इसका टोटल का आंसर देगा, ठीक है। सो रॉयल्टी इज रिसीव्ड, सब अपने पेपर खोलकर लिख लो, ROR, NOR, NR, 3 कॉलम्स बना लो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जल्दी से एक फॉर्मेट बना लो एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर, ओके, टोटल आंसर। शुरू कर दो, अभी बना रहे हो फॉर्मेट? शुड आई स्टार्ट? कोई भी अनम्यूट करके इसका आंसर नहीं देगा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फॉर अ पेटेंट रजिस्टर्ड इन दुबई फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी and the foreign company has used the patent for manufacturing purposes in India. कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखते चलो, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी का लिखते चलो, वेदर इट इज इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, और अगर टैक्सेबल है जिसके लिए उसमें अमाउंट लिख दो। Second, dividend from a UK company received outside India. Mr. Z is the assessee, holds more than 50% shares in the UK company. Business of the company is partly controlled from India. ये दोनों क्वेश्चन देख लिए सबने? Should I move to next? सब बताओ जल्दी से मुझे, दोनों क्वेश्चंस देख लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, give me a second. These are the next. Loss from a business situated in Dubai, controlled from Nepal.
loss from a business situated in Dubai controlled from Nepal. बस तुम्हें आगे इसका लिखना है जोन सी भी इनकम है और क्या किसके लिए क्या टैक्सेबल होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज rent of a commercial property situated in Nepal received in Bhutan. Rent of a property situated in Nepal and received in Bhutan. Next, income from agriculture operations in Nepal received in Nepal and later on remitted to UK for investment purposes. However, no income is generated during the previous year out of this investment. Bracket close. Agricultural operations are controlled from India by team of professionals. आगे चलो. तीनों कर लिए. अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करो. आई एम नॉट गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स. तुम्हें ये चेक होगा कि तुम्हें कितना समझ में आया ये रेजिडेंशियल स्टेटस. Should I move next? Yes, ma'am. Last two parts. Income from house property situated in Mumbai. Rent is received in Dubai, but on the next date is remitted to India. Income from house property situated in Mumbai. Rent is received in Dubai, but on the next day it is remitted to India. And the last one is pension received in Dubai. Services was rendered in India with a foreign company. जिसका हो गया है प्लीज वो मुझे ग्रॉस टोटल इनकम बता दो. आरओआर, एनओआर और एनआर की. Just total the columns and tell me. जल्दी करो टोटल एंड टेल मी द आंसर. मैम लॉस वाला स्लाइड पे शो कर सकते हो आप? क्या? मैम वो जो लॉस वाला पॉइंट था वो वाला स्लाइड शो कर सकते हो आप? लॉस वाला पॉइंट मेरे को ना अनशेयर करनी पड़ेगी बार बार. जस्ट अ मिनट. दिख रहा है ये लॉस फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन दुबई कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल.
किसी का भी नहीं हुआ है? बेटा आपको क्वेश्चंस थोड़ी लिखने, आपको सिर्फ अमाउंट लिख के मुझे टोटल बताना है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम ROR 6,50,000। ROR आ रहा है 6,50,000। ओके, आप एक काम करो, कमेंट में लिखो तीनों के, बाकी सब भी लिखो जल्दी, फिर आई विल शो यू बिकॉज आई हैव टू डिस्कस ऑल्सो। क्वेश्चंस थोड़े से अलग है इसके। कमेंट में लिखो जिस जिसका हो गया है। ROR 9,50,000, 6,50,000, 2,50,000। ओके, खुशी का 6,50,000। ROR का कम आ रहा है खुशी, NOR का ज्यादा हो रहा है। ऐसे तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तनु का है 6,50,000, 6,50,000। सबसे पहले आंसर ही देखते हैं। आंसर है 7,50,000, 5,50,000 एंड 4,50,000। किसी का आया है सेम आंसर? NR का सही आ रहा है 4,50,000 काफी बच्चों का। NR ठीक है, बट मेरा किसी से भी ROR और NOR नहीं मैच कर रहा। मैम एग्रीकल्चर इनकम को लेना था। करेंगे अभी डिस्कस। और किसी को अपने आंसर्स देने हैं? चलो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। Royalty is received outside India for a patent registered in Dubai from a foreign company, and the foreign company has used the patent for manufacturing purposes in India. So royalty India से बाहर received हुई है, और जो पे करा है वो किसने पे किया है? रेजिडेंट ने। किसको पे किया है? फॉरेनर को, जो जो भी फॉरेन सिटीजन है। और उसने उस पेटेंट को किस लिए यूज किया है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस इन इंडिया। सो इट इज लाइंग अंडर द थर्ड कंडीशन। जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस है उसमें थर्ड कंडीशन में लाई कर रहा है, व्हेन द पेमेंट इज बीइंग मेड बाय अ रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट। So it is deemed to accrue or arise in India, so it is an Indian income. So it is taxable in all the three cases. ठीक है, मुझे बताते जाना किसने कौन सा गलत किया। ये सबने ठीक किया था ये वाला? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट पे आओ। ये अलग था क्वेश्चन ना थोड़ा। डिविडेंड फ्रॉम अ यूके कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। Mr. Z holds more than 50% shares in the UK company. Business of the company is partly controlled from India. इसका क्या आंसर होगा? मैम फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। Foreign income. ठीक है, इनकम तो फॉरेन है पक्का। ठीक है, सो ROR के केस में तो चला गया पूरा 1,50,000। अब टेल मी अबाउट NOR। NOR में भी चार्जेबल है। Yes, ma'am. इनोवा में भी जाएगा। NOR में भी चार्जेबल है? यस मैम। यस मैम। 50%। क्यों? Partly Road controlled in from India. India। फ्रॉम इंडिया। बेटा 50% फिर आप फिर बिजनेस कनेक्शंस पे पहुंच गए हो। बिजनेस कनेक्शंस वाली बात नहीं हो रही, कोई एट्रीब्यूटेबल बात नहीं हो रही, कोई फ्रैक्शन नहीं लेना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि NOR के केस में दो केसेस थे ना, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया और बिजनेस, और बिजनेस इज कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। ये किस चीज के बारे में बात हो रही है पता है आपको? बिजनेसेस के बारे में, PGBP इनकम के बारे में है ये रेजिडेंट और HUF के बारे में नहीं है। ये रेजिडेंट का बिजनेस था क्या? शेयर्स थे ना उसके 50% से ज्यादा,
क्या कंपनीज में, ये कंपनी है ठीक है, जिसमें इसने इन्वेस्ट किया है, पहली बात तो ये बिजनेस भी नहीं है, इट्स अ कंपनी, इंडियन इनकम, ये फॉरेन कंपनी है, मिस्टर जी फॉरेन सिटीजन है, उसको तो शेयर्स डिविडेंड मिले ना इन शेयर्स पे, ठीक है, वो कंडीशन तो उनके लिए आ जाती है जिसमें बिजनेस, जो पीजीबीपी इनकम होती है ना, वो दो केसेस पीजीबीपी में आते हैं। हमें पता है ना कि हम लोग फॉर्म्स का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हैं, आता है ना हमें निकालना, उस केस में हम वो एनओआर ये सब हम निकाल लेते हैं, राइट। तो वहां पे वो केस लगेगा बिजनेस वाला, बिजनेस और प्रोफेशन। मिस्टर जी तो एक कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका बिजनेस नहीं है ये, उसकी कंपनी नहीं है, ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब कोई एसएससी हमारा उसका ओनर होता है ना, तब वो केस आता है कि उसका जो बिजनेस था, जो असेसी जिसका वो बिजनेस या उसका प्रोफेशन था, वो कहाँ था। यहाँ पे मिस्टर जी इज नॉट द ओनर, ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 50% शेयर्स। क्या जिसका 50% शेयर से ज्यादा होता है, इट डजंट मीन ही इज द ओनर। समझ रहे हो? इनकम टैक्स की लैंग्वेज में ये सिर्फ डिविडेंड पे हकदार है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर एंड दैट टू ऑफ अ कंपनी, ठीक है, किसी कंपनी का ही इज अ शेयर होल्डर। तो इट इज अ फॉरेन कंपनी बट सॉरी फॉरेन इनकम, बट इट इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ एनओआर, ठीक है, एनओआर के केस में नहीं होगा। कंफ्यूजन है ना, तो दोबारा जाके खोल लेना, तुम एक बार मैं ही खोल देती हूँ, वेट करो, इसमें बस टाइम लगता है। यहाँ पे केस हुआ था ना ये, इफ इट इज अ बिजनेस इनकम, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जो दो केस था, इफ इट इज अ बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड, इस केस में क्या होता है, ही इज द ओनर, ही इज रनिंग अ बिजनेस, या फिर उस जो सेसी है उसका ये प्रोफेशन है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात हो रही है कि उनका जो बिजनेस है, इसमें ये इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं था, उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस कंपनी के बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो जब हम उस कंपनी का निकालेंगे ना रेजिडेंशियल स्टेटस, हम उस कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस में बोल देंगे कि वो रेजिडेंट है। बट इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जब तक ये नहीं लिखा ना कि उसी का बिजनेस है, तब तक हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे अगर कोई आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें देखो इसका लिखा हुआ है बिजनेस इनकम एंड प्रोफेशनल इनकम। अब इस क्वेश्चन में ना अगर आप देखोगे, उसकी बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम, इसमें शेयर्स नहीं है उसके, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इसकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, और ये सेटअप बाहर हुई है, सब कुछ बाहर है, तो हमने इसको फॉरेन इनकम कर दिया, और दूसरे वाले में हमने इसे क्या बोला है, कंट्रोल्ड फ्रॉम, हाँ इसमें कंट्रोल था इसीलिए हमने एनओआर के केस में इसको यस कर दिया, सॉरी इस केस में हमने एनओआर में नो किया क्योंकि इट इज एंटायरली आउटसाइड और इट इज इनसाइड इंडिया, दैट इज व्हाई वी हैव टैक्स्ड। बट यहाँ पे पढ़ा करो कि इट इज बिजनेस इनकम एंड प्रोफेशनल, मतलब उस इंडिविजुअल की ये बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी इनकम है उसकी ये, ठीक है। होता है ना प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस की, वो इनकम की बात हो रही है। जो हमारा क्वेश्चन है ना, आते हैं एक सेकेंड रुको, जो हमारा है ना, हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम, बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसी वजह से ना ये एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इस अब क्या ध्यान रखना है, हमारे लिए एक लर्निंग हुई है कि जब भी हमें इनकम देखनी है तो हम उसकी टाइप ऑफ इनकम देखेंगे कि कहाँ से उसको सोर्स हो रही है। अब इस केस में जस्ट बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर, ही इज अर्निंग अ डिविडेंड इनकम, और डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ यूके कंपनी हमारी फॉरेन इनकम ही रहेगी, ठीक है, इसीलिए इट इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ एनओआर। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन दुबई कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल। इसका क्या किया है सबने? मैम ROR से लेस कर दिए।
सिर्फ ROR के केस में होगा एंड दैट टू सब्ट्रैक्ट होगा सिंस इट इज अ लॉस, इट इज नॉट अ प्रॉफिट, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एडेड, इट इज रादर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, रेंट ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड इन भूटान। Foreign income. Foreign income Foreign income. and taxable only in case of ROR. ठीक है, ये भी ठीक किया आप लोगों ने। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इन नेपाल received in Nepal later on remitted to UK for investment purposes. However, no income is generated during the previous year out of this investment. Agricultural operations are controlled from India by team of professionals. इसमें क्या किया? Is it in Indian? हाँ? Foreign income. ये फॉरेन इनकम है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ROR के केस में टैक्सेबल है और NOR के केस में नहीं है। NOR और NR के केस में नहीं है, ये गलती हुई है बस, क्योंकि NOR के केस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि द प्रोफेशन इज सेट अप इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो इंडिया के प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इन इंडिया। इट मींस द प्रोफेशन इज सेट अप इन इंडिया, क्योंकि कंट्रोल पूरा इंडिया के टीम, जो प्रोफेशनल टीम है, उससे कंट्रोल हो रहा है। तो हमारा सेकंड केस सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इस केस में NOR के केस में होगा। अब ना एक चीज पे ध्यान देना, स्टार्टिंग में लिखा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इन नेपाल। ठीक है, तो ये इनकम ना एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के, फिर ब्रैकेट में लिखा है कि वो रिसीव हुई है नेपाल में, यूके में रेमिटेड हुई है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर्पस हुआ है और उसके बाद कोई भी इनकम नहीं जनरेट हुई। अगर यहीं पे इनकम जनरेट होती ना, अगर ये लिखा होता कि दिस पर्टिकुलर 1 लाख इंक्लूड्स 20,000 इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, जो कि सब कुछ बाहर जनरेट हुई है और बाहर ही इन्वेस्ट हुई है, तो हमारा ना वो 20,000 इसमें मतलब यहाँ पे तो पूरा 1 लाख लगता, बट यहाँ पे खाली 80,000 ही लगता। हम सिर्फ इनकम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की देखते हैं, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई है वो हम चेक नहीं करते फिर। ठीक है, तभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड करके कोई भी इनकम नहीं जनरेट करी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से करी है। ठीक है, सारा जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हो रहा है ना, वो भी बाहर हो रहा है। It's just that the professional team which is set up in India is controlling that. So जो टीम के अकॉर्डिंग, जो प्रोफेशन सेटअप से जो उनका बिजनेस इनकम हो रहा है, जो भी इनकम हो रहा है, सिर्फ वही NOR के केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से कुछ होता ना, तो वो NOR के केस में नहीं लगता। ROR के केस में तो पूरा फॉरेन इनकम लगता है, चाहे कितना भी हो। ठीक है, चाहे वो 2-3 लाख जितना भी कमा रहा है, सब लगता है। बट NOR के केस में हम सिर्फ वही फ्रैक्शन लेते जो हमारा प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो सिर्फ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लेते हैं। उससे उसके बाद वो उसको कहाँ इन्वेस्ट करते, क्या लेते, क्या नहीं लेते, वो NOR में नहीं आता फिर। ठीक है, सो एक गलती आप लोगों की यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, rent is received in Dubai but on the next day it is situated to India. क्या किया इसका? मैम इंडियन इनकम। मैम इंडियन इनकम। इंडियन इनकम, परफेक्ट, क्योंकि it is deemed to accrue or arise in India। उसका एक केस बैठ रहा है कि asset is situated in India। Okay, next वाला, pension received in Dubai, services was rendered in India with a foreign company। Indian income. इंडियन इनकम। Indian income because services are rendered in India। So in short आपकी सिर्फ 2 गलतियां हुई थी, आपका आंसर मैच कर जाता, नहीं तो मेरे से। बट मुझे बस ये डाउट है कि आप लोगों का ROR भी नहीं मैच किया किसी का भी मेरे से। 7,50,000 NR तो मैच कर गया था, ये क्यों नहीं मैच किया? मैम 1,000 लॉस माइनस करना था ना, तो मैं ऐड कर दिया था। ऐड कर यस दिया, मैम, वो ऐड किया। ओके ओके। अब टैक्स पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ इनकम ऐड होती है, लॉस सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो थोड़ी गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करोगे, वो तो आप अपनी इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना कि मुझे इस पर्टिकुलर सोर्स से लॉस हुआ है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस कंप्लीट पिक्चर वाला रिपीट कर दो।
कौन से वाला? मैम एग्रीकल्चर वाला। देखो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको ना इनकम जहां से आप अर्न कर रहे हो ना उसका सोर्स देखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इन नेपाल है, और जो ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है ना ये कंट्रोल्ड है फ्रॉम इंडिया बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो जहां से इनकम आ रही है वो पूरा कंट्रोल्ड है, इसलिए 1 लाख पूरा का पूरा एनओआर के केस में चला गया, क्योंकि इनकम सिर्फ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की है। ठीक है, मैम एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना इनकम टैक्स में? बेटा वो ना इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम है, और वो हम जब एग्जेम्प्टेड करेंगे ना हम तब देखेंगे, अभी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। यू आर राइट, बट दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम। अगर यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर कर रहा है ना वो एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक है, बट वील डू दैट लेटर ऑन। अभी देखो, सिर्फ मेरा कहने का ये मतलब था कि इस क्वेश्चन में ना लिखा तो हुआ है कि इन्होंने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की इनकम को यूज किया है और कहीं इन्वेस्ट किया है, बट इनको कोई इनकम नहीं आई है। बट अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि इनको कोई इनकम भी आई थी इन्वेस्टमेंट से सपोज 20,000 रुपीज, और ये 20,000 इसमें इंक्लूडेड होते, तो उस केस में मैं कह रही थी कि एनओआर 80,000 जाता, क्योंकि इसमें 20,000 जो इन्वेस्टमेंट इनकम है दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। सो यहाँ पे 80 जाता है, यहाँ तो 1 लाख ही रहता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता, बट एनओआर के केस में इट वुड हैव बीन 80,000। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस ना आप लोगों के सिलेबस में कम ही है, जिसमें और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है। उन्हीं सिंपल में 1-2 क्वेश्चंस में वो थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं, अदरवाइज आप लोगों का जो सिलेबस है वो सीए इंटर लेवल का नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए उतना बेटर है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर रेजिडेंशियल स्टेटस। लेट मी फर्स्ट